Thank God for what we heard today. प्रभु का धन्यवाद जो मैंने सुना उसके लिए। No, as I was listening to Danny, the one thing was coming to my heart. The best time of fellowship with God was when at times which I have troubles, where I had fear, where something that was going, inside. और जैसे इस वचन को सुन रहा था कि सबसे उत्तम समय परमेश्वर के साथ संगति का तब होता है कि जब मैं बहुत ही भय से, समस्याओं से, तकलीफों से पूरी तरह से घिरा हुआ होता हूँ। Because when there were problems, that is the time I used to go very close to God and really pray hard, come overcome that situation or whatever it is. उस समस्याओं के स्थान पर हमारे पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं होता, इसलिए हम परमेश्वर के पास आते हैं। So that when there are storms in life, then I run to Jesus. और जब जीवन के अंदर तूफान होते हैं तब हम परमेश्वर यीशु के पास दौड़ते हुए चले जाते हैं। But what about when the sea is calm? Everything is calm in my life. और what is happening at that time? और जब वो तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है तब मेरे जीवन में क्या हो रहा है? I was just comparing my life. Is that love or that that prayer life or whatever it is? Is that same when I had problems or it has come down a little bit? तब मैं यदि मेरे जीवन को जांचूं, मेरा परमेश्वर के लिए जो प्रेम है या भक्ति जो है, क्या वो उस समय जैसे मैं उन तकलीफों में था उसके जैसे ही है या वो कम हो चुका है? I could see my life. I could see that this I was okay, but here when there's something and nothing was there, I was calm and quiet. I was relaxed. और यहाँ पर जब मैं देखता हूँ कि जब पूरी तरह से कुछ भी नहीं था, तो मैं कुछ पहले समस्या आई थी तो बहुत परमेश्वर के नज़दीक था, और जब सारी चीज़ें ठीक हो चुकी तो बड़े आरामदायक मैं हूँ। One verse, it's in just Ephesians chapter 2 and verse 8 and 9. There's a main verse I always forget. और इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 8 और 9 वचन। It says here, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं हुआ। It is a gift of God, not a result of works, and that no one can boast. और ये परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। By grace of God I was saved. What a life I'm living today is because of because God saved me. और and I believe that time. But it's nothing that I have done something great, that I can boast about और certain आज things. जो भी जीवन में जी रहा हूँ वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मैं कभी भी कोई घमंड या बड़ाई नहीं कर सकता। But thank that God, that's such a great God. As Brother Danny was sharing about fellowship with God. God comes and says, I'll coming and knocking the door. I'll come and dine with you. और जैसे कितना परमेश्वर महान है, जैसे हमने वचन में सुना कि परमेश्वर खटखटाता है ताकि वो भीतर आकर हमारे साथ भोजन को करे। See, I think about a person like I being Santosh, being a worst sinner. Till today I fall. But God coming and saying, I am coming to you. I am knocking at the door. Come on, let's sit together. और मैं एक संतोष, मैं देखता हूँ अपने आप को कि मैं आज भी गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन परमेश्वर खटखटा कर आज भी वो कहता है कि दरवाज़ा खोल, मैं आकर हम एक दूसरे के साथ भोजन करेंगे। There's one more verse in Isaiah, I think chapter 1. और यशायाह नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय के अंदर I'm reading the ERV version. It says, Isaiah chapter 1 and verse 18. उसका 18 वचन। I, the Lord, am the one speaking to you. Come, let's discuss this. Even if your sins are dark as dye, that chain can be removed and you will be pure as wool. That is as white as snow. और यशायाह अध्याय 1 वचन 18, परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। In ASB says, let's come and sit together and discuss. Whatever problems are, we'll come and sit together. और दूसरे एक अनुवाद में इस प्रकार लिखा है कि आइए जो भी तुम्हारी तकलीफ समस्या है, एक दूसरे के साथ हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, आइए हम बात करते हैं। I had sometimes thinking, why God, I am going wrong, but still you are there too, and you are coming and you are ready to discuss all things and clear those situations for me. और प्रभु मैं तो गलत होता हूँ, लेकिन प्रभु तू रुचि रखता है फिर भी मेरे साथ आकर उन सारी चीज़ों को सही करने में। There were no verses, but in Revelations also you said, when God says, you have to go back to the place, you have lost your first love. और प्रकाशित वाक्य में जैसे लिखा है कि हमें उस स्थान पर जाना है जहाँ पर हमने अपना प्रथम या पहला प्रेम खो दिया है, And repent. और वहाँ पर मन फिराना है। Why God says that first love? और क्यों परमेश्वर यहाँ पर पहले प्रेम के बारे में बात करता है? When I was saved, I knew nothing was there. I was literally dying, but
God, came to my help and He saved me. और क्योंकि जब मैं पूरी तरह से उस मृत्यु की अवस्था के अंदर था, परमेश्वर आकर उसने मुझे बचाया, मेरा उद्धार किया, That pure love was there for Him. और पूरी तरह से वो शुद्ध प्रेम उसके लिए मेरे अंदर था। Later on, as days goes by, that level of love, the graph of love, it goes down. और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, वो जो ग्राफ होता है परमेश्वर के लिए प्रेम का, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। Because it is not that God changed, but it's because I changed. और ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर बदल चुका था, ये इसलिए क्योंकि मैं बदल जाता हूँ। That love for Him, was there, but somebody else took the place. और परमेश्वर का प्रेम जहाँ पर था, अब वहाँ पर किसी और चीज और व्यक्ति ने स्थान ले लिया है। It might be, like work pressure. और हो सकता है वर्क का दबाव हो सकता है, It might be, like, I'm not saying that it's sinning, but I'm saying about the family issues. और वो पाप में चीजें नहीं हो सकती, शायद पारिवारिक बातें हो सकती हैं, Somebody is ill. और कोई बीमार है। But it's all these issues, problems are there, but the love of God is most, because He is there to fight our battles. और ये सारी समस्याएं तो उसकी जगह पर है, लेकिन वो परमेश्वर का प्रेम होना जरूरी है, क्योंकि वही हमारे युद्धों को लड़ता है। I was thinking about my mom, so she's not well every day. She's have problems to take care. और मेरी माता के बारे में, मम्मी के बारे में सोच रहा था कि वो बीमार है, वो बहुत सारी समस्या उनको होती है। Then there's a fear, like something happens to her, still she is not accepted. Something happens to her, what will happen later? और Will we एक- really be saved? और एक भय मेरे अंदर होता है कि यदि मेरी माँ को कुछ हो जाए तो क्या वो उसका उद्धार नहीं हुआ, तो क्या वो सच में उद्धार उसका होगा या नहीं, Will God really save her? और क्या परमेश्वर उसका सच में उद्धार करेगा। So many days are going by, nothing is happening. और बहुत सारे दिन बीतते चले जाते, कुछ भी नहीं हो रहा। This is that going on the head. Whatever it is, it's that pressure is being put. That I put more focus on these things and forget God. और यहाँ पर इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ और परमेश्वर को भूल जाता हूँ, इनको आगे रखते हुए। Because when He is promised, He'll take care. और क्योंकि यदि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है तो वही उसकी चिंता ख्याल करेगा। The two things I was reading, like in the Bible, there are two trading taking place. Two tradings. और यहाँ पर मैं पढ़ रहा था कि दो प्रकार के व्यवहार होते हैं उसके बारे में। One happened in the Old Testament, एक like पुराने नियम में होता है, one where Esau sold his birthright. और जहाँ एसाव अपना जो वो उस भोजन के लिए अपने उस जन्म सिद्ध अधिकार को बेचता है। And there was second, where Judas for some coins, he gave up Jesus. और एक दूसरा हम देखते हैं नए नियम के अंदर, जहाँ यहूदा इस्करियोत कुछ उस सिक्कों के कारण यीशु मसीह को पकड़वाता है। They lost. Esau lost his birthright, and Judas had to commit suicide. और एसाव ने अपना जो जन्म सिद्ध अधिकार था उसको खो दिया, और वहाँ पर यहूदा इस्करियोत भी जाकर आत्महत्या करता है। I was really praying, God, help me that my focus of you won't change, but to other things. और प्रभु मेरा जो ध्यान है वो और चीज़ों की तरफ नहीं होना चाहिए। I shouldn't be, like once that love of God goes, automatically, the things for others increases more. और ये सारी चीज़ें जो है, परमेश्वर का प्रेम जब ठंडा हो सकता है या दूर हो जाता है, तो ये सारी आसपास की चीज़ें वहाँ पर बढ़ने लग जाती है। Like but Daniel was sharing about spending time on the mobile. Like I've been doing that. Like it's not that you spend on doing some sin, but watching some videos. And I think it's really good, but I spend more time on all those things. और जैसे भाई डैनी ने बताया कि मैं भी उस प्रकार करता हूँ कि बहुत सारे अच्छी चीज़ें पाप में नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करता हूँ मोबाइल के अंदर वीडियोस देखने के लिए। But I lose that precious time with God. लेकिन वो बहुत ही मूल्यवान समय जो परमेश्वर के साथ बिता सकता हूँ, उसको मैं खो बैठता हूँ। And certain things, as you are saying, they corrupt our life. और जैसे हमने सुना कि वो हमारे जीवन को पूरी तरह से दूषित कर देता है। And if you read John 17, और यदि हम यूहन्ना 17 को पढ़ते हैं, verse 3, वचन 3, it says, and this is eternal life, that people can know you, the only true God, and that they can know Jesus Christ, the one you have sent. और अनंत जीवन यह है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। Jesus speaks about eternal life. We normally see speak eternal life, but here he speaks about eternal life. What is eternal life? First is knowing God. और यहाँ पर अक्सर हम अनंत जीवन के बारे में बातें करते रहते हैं, लेकिन वो क्या है? वो है परमेश्वर को जानना, And knowing Jesus Christ whom he has sent. और यीशु मसीह जिसको उसने भेजा है उसको जानना। So that
to know Him, I have to spend more time, have that more fellowship with Him. और उसको जानने के लिए मुझे और अधिक समय बिताना पड़ेगा और अधिक संगति उसके साथ करना होगा। So, do I have that thing like God? What a thing, like the time I get, I want to spend the time with you. और प्रभु जो भी समय मुझको मिलता है प्रभु मैं तेरे साथ उस समय को बिताना चाहता हूँ। I am like, I'm not saying that I'm God, but I am still also doing that. I'm also saying I spend more of time, but I want to correct myself, और ये मैं नहीं कहता कि मैं ये कर चुका हूँ या मैं अच्छे से इस पर हूँ, लेकिन मैं भी अपने आप को इस क्षेत्र के अंदर सुधारना चाहता हूँ। As we heard about doctors, like normally if you see a doctor who does an operation, like you see who does a bone operation, whatever it is. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे एक डॉक्टर होता है कि जब वो सर्जरी या ऑपरेशन करता है, there's after the operation there's a physiotherapist who comes, and helps you doing exercise, to that that whatever, like for operation of the leg, so he'll help you do exercise the leg, that your leg will become normal. और ऑपरेशन होने के बाद एक फिजियोथेरापिस्ट होता है जो आपके जो घुटने होते या हड्डी होती है उसको वो एक्सरसाइज करवाता है ताकि वो अपने पहले की नॉर्मल स्थिति पर आ जाए। God does that operation in our life. और परमेश्वर हमारे जीवन में ऑपरेशन करता है। But He has given us a helper, the physiotherapist, the Holy Spirit, who can help us exercise in those areas where we are weak. और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा उस फिजियोथेरापिस्ट के रूप में हमको दिया है ताकि उन क्षेत्रों के अंदर हम अभ्यास करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, जिन क्षेत्रों के अंदर हम निर्बल है। He will remind us what Jesus has spoken. और पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएगा, स्मरण दिलाएगा जो यीशु ने कहा है। That we will be strengthened in our inner life. और ताकि हमारे भीतरी जीवन में हम बल पाएंगे। But do I really seek for the Holy Spirit? क्या मैं पवित्र आत्मा की खोज करता हूँ? Is that God will take over, like we have heard many times, if there's a glass full of water, until unless you empty it, you can't fill it with something else, और जैसे हम जानते हैं कि एक ग्लास जो पूरी तरह से भरा हुआ होता है तब तक उसको हम दोबारा नहीं भर सकते जब तक वो पहले का पानी हम खाली नहीं कर देते। That's the time when I empty myself and I say, God, you come and take over. I can't fight all these battles, but I want you to come in me and you fight my battles. और जब तक कि हम अपने आप को पूरी तरह से खाली नहीं कर देते और उससे कहते कि प्रभु अब तू मुझे पूरी तरह से भर, क्योंकि मैं अपने लड़ाइयों को, युद्धों को अपने आप से नहीं लड़ सकता, प्रभु तू उनको मेरे लिए लड़। I surrender my life to you. This is that total emptiness I give to you. और That पूरी you fill it. प्रभु पूरी तरह से मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, तुझे दे देता हूँ, प्रभु तू अब इसको पूरी तरह से भर दे। I have seen where in certain areas in my life where I have been such a like I had backslider, but when I came to God, it was a place that you do work and He has done His work in me. और जब मैं देखता हूँ कई बार मैं अपने जीवन में पीछे हटा हूँ, लेकिन प्रभु जब मैं कहता हूँ कि प्रभु तू अपना कार्य मेरे जीवन के अंदर कर, और उसने ऐसा किया है। And last in verse said, first is when you hear John chapter 10. और जब यूहन्ना उसका 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं, Verse 27 27 वचन says, my sheep listen to my voice, I know them and they follow me. मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। If I really follow, I really want to have fellowship with God, first is I listen, my ears are open and I'm listening to what He is saying to me. और यदि मैं सच में परमेश्वर के साथ संगति करना चाहता हूँ, मेरे कान हमेशा खुले रहेंगे उस शब्द को सुनने के लिए जो मुझसे कहना चाहता है, And I follow Him. मैं उसके पीछे पीछे चलूँगा। I was really meditating on this, God. I see, sometimes I become really, adamant. और I don't follow you, but I want to follow you now, Lord. और कई बार मैं अपने जीवन को जांचता हूँ, मैं देखता हूँ कि प्रभु कितना कठोर अंदर से भीतर से हूँ, प्रभु मैं तेरा अनुसरण करना चाहता हूँ जो मैं नहीं कर पा रहा था। I was praying that God, I want to, listen to your voice. Just not listen, but I want to listen and obey. और प्रभु मैं तेरी आवाज़ को केवल सुनना नहीं चाहता पर उसकी आज्ञा पालन भी करना चाहता हूँ। When these things come in my life, my total submission comes, then my life will change. और जब ये ऐसा पूरा समर्पण यदि परमेश्वर के सामने आ जाएगा तब मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। And if I just, as Paroj was sharing, Sunday there's a different face which I carry, like a different mask I carry, like a holy mask. And from Monday to Saturday,
there's a different mask where I wear, when I'm in the house or when I'm in my workplace. और जैसे हमने वचन के अंदर सुना कि रविवार को एक मुखौटा हम पहनते हैं कि मैं पवित्र व्यक्ति का मुखौटा पहनता हूं, और जब मैं घर पर होता हूं सोमवार से शनिवार तक मेरे काम की जगह पर घर पर एक अलग प्रकार का मुखौटा या मास्क मैं पहनता हूं. You know, God doesn't want us to be like that. You know, as we say we also claim we are children, and God knows we are children. Then we have to be like His children. और हम भी जानते हैं और परमेश्वर जानता है कि हम उसके संतान हैं, लेकिन हम उसके संतान के समान हमको बनना है. Well, Jesus says, "No, if you love me, then obey my commandments. Don't love me, don't do it." और यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो, अगर ये नहीं प्रेम करते हो तो मत करो. So that love has to be there. वो प्रेम मेरे भीतर होना चाहिए. And one more verse in 1 John chapter 3, 18 and 19. पहला यूहन्ना 3:18. It says, "Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. We will know by this that we are of the truth, and will assure our hearts before Him." और हे मेरे प्रिय बालों को हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें, इससे हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बातों में हमारा मन हमें दोष देगा उस विषय में अपने आप से आश्वस्त कर It is सकेंगे. not just I speak certain things from a word, you know, I confess certain things, but that should be seen in my life. You know, और केवल मेरे शब्दों से मैं केवल बोलता नहीं हूँ या अंगीकार नहीं करता हूँ, लेकिन ये बातें मेरे जीवन के अंदर देखी जा सकती है. when that working of God is seen in my life, then I have that assurance in my life, you know, that I'm going the और right जब path. परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन के अंदर जब हो रहा होगा तब वो आश्वासन मेरे जीवन में होगा कि मैं एक सही मार्ग पर चल रहा हूँ. May God really help us. प्रभु मेरी सहायता करें. I thank God and praise God for the opportunity He has given me to testify myself. परमेश्वर ने आज जो दिया हुआ अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ. Talking about my childhood days, which were the most precious days of my life till now. और जो मेरा बचपन का दिन है, जो मेरा ज़िंदगी का सबसे मूल्यवान दिन आज तक का है. Those days I learned a lot of discipline and also enjoyed like how a normal kid does. उन दिनों में मैंने बहुत सारा अनुशासन मेरा जीवन में सीखा और एक साधारण बच्चा जैसा बहुत सारा आनंद और बहुत सारा चीज़ का आनंद भी उठाया. I was regular to church, attended Sunday school, had very good Christian friends, because of whom I learned how to pray, worship God and meditate on God's word. मेरे पास अच्छे मसीही दोस्त थे, तो उसके कारण मैं परमेश्वर के साथ संगति करना, प्रार्थना करना, प्रभु का वचन में मगन करना, वो सब मैं सीख गई. Gradually, as and when I grew up to my pre-teens, when I was in my 9th standard, और मैं जब 13 वर्ष के पहले 12 साल तक पहुंच गई, तो 9th स्टैंडर्ड में जब मैं थी, I got accompanied by bad friendships which slowly took me away from God. और उस दौरान मेरा जीवन में बुरे संगति आए और उससे मैं परमेश्वर से दूर चली गई. But God never left me alone. He was always with me even when I was astray. लेकिन परमेश्वर ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा. जब भी मैं परमेश्वर से दूर चली गई तभी भी परमेश्वर मेरे साथ था. He knew how to bring me back again to the right path and He did it. और उसे मालूम था कि मुझे कैसा उसके पास वापस लाना है, और उसने वो किया मेरे जीवन में. He showed me how much love He has for me more than my earthly parents. और उन्होंने मेरे जीवन में ये बताया कि परमेश्वर मेरे से कितना प्रेम करता है, मेरा इस दुनिया के माता पिता से बढ़कर. God taught me to trust Him and love Him the most than anyone else in this world. और परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि ये दुनिया में सब लोगों से ज़्यादा उस पर भरोसा करना और उसको प्रेम करना. Worldly people hated me for my appearance but acted as if they liked me when I was with them. और ये संसार के लोग जो है मैं कैसे दिखती हूँ उसके कारण मेरे को उन लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब मेरे उनके सामने आती थी तो अच्छे से बात करते थे. But God loved me with an everlasting love. He loved me so much that He died for my sins. लेकिन परमेश्वर ने मुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया. उसने इतना प्रेम किया कि उसने मेरे पापों के कारण अपने जान दिया. Not only that, He forgave me for the worst and deepest sins I've committed. उतना ही नहीं, मेरे जीवन में जो भी पाप, जो बुरा पाप है, वो भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्षमा किया. Worldly people were selfish, but my God blessed me endlessly more than what I deserve. Until now, He supplies all my needs.
और ये संसार के लोग जो है बहुत स्वार्थी रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है बहुत मुझे प्रेम करके मेरा सारा ज़रूरत आज तक परमेश्वर ने पूरा किया। God taught me to value my parents and sisters. He taught me to obey the first commandment as a child in Ephesians 6:1. परमेश्वर ने मुझे सिखाया मेरा माता पिता को और मेरी बहन को प्रेम करने के लिए, और एफेसी 6:1 का जो आज्ञा है उसका पालन करने के लिए। Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। In the same time, I got the verse from Matthew 6:33 as I was reading my daily devotion. उसी समय मुझे मत्ती 6:33 का वचन भी मिला। But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। God taught me to seek him first. परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि उसका पहला खोज करना। 2 months before my 10th board exam, I was very tensed on what choice to make, how my future will be. और मेरा 10th का बोर्ड एग्ज़ाम के 2 महीने पहले मैं बहुत चिंतित थी कि मैं क्या करूं और मेरा भविष्य क्या होगा। During that time, God gave me the verse in Jeremiah 29:11. और उस समय यिर्मयाह 29 का 11 वचन परमेश्वर ने मुझे दिया। For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. क्योंकि यहोवा का यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। And this verse is being fulfilled in my life as promised. और ये वचन जैसा परमेश्वर ने वायदा किया वैसा मेरा जीवन में पूरा हुआ है। Therefore, I have decided to dedicate my life to Jesus and take him as my personal savior and take water baptism in the name of Jesus. और मैंने मेरा जीवन यीशु मसीह को समर्पण किया है और उसको मेरा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके मैंने स्वीकार किया है, और उस कारण मैं बपतिस्मा में उसको गवाही करना चाहती हूँ। Henceforth, I wish for a life walking on towards perfection. और आगे सिद्धता की ओर बढ़ने वाला जीवन में इच्छा करती हूँ। A life where I want to be free from the sins of the flesh and have a new beginning in my life ahead. और ये शरीर का जो पाप से आज़ाद एक जीवन जीने के लिए और एक नया शुरुआत मेरा जीवन में होने के लिए मैं चाहती हूँ। I believe God would give me the strength and wisdom to live a life pleasing to him and be his disciple the rest of my life. मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देगा ताकि मैं उसके सामने एक प्रसन्नता का जीवन जिए और अंत तक परमेश्वर का यीशु मसीह का एक चेला होके जीवन बिताने के लिए। Praise and thank the Lord. प्रभु की स्तुति और धन्यवाद। Really, I was very much blessed with the words that I received in this week and last week also. और इस पूरे सप्ताह में, उसके पिछले सप्ताह के अंदर भी जो वचन मैंने ग्रहण किया, मैं मुझसे बहुत आशीषित हुआ। I was just thinking this morning, I die, where will I go? और इस सुबह मैं सोच रहा था यदि मेरी मृत्यु होती मैं कहाँ जाऊँगा। Because I was just examining myself and then I said, I will not be fitting to heaven but to hell. और क्योंकि मैं अपने जीवन को यदि पूरी अच्छे से जांचूं तो मैं स्वर्ग जाने के योग्य नहीं पर नरक में जाने के योग्य ठहरूंगा। Always there is a want that we should be in the best place, but when it comes to our spiritual life and to the life after our death, it is a question mark. और क्योंकि हम हमेशा एक सर्वोत्तम जगह पर ही होना चाहते, लेकिन हमारे मृत्यु के बाद अगर स्वर्ग जाना हम चाहते या उसके बाद के जीवन के बारे में एक प्रश्नार्थ वाक्य होता है। It is a life between you or it is a life between me and God. और ये मेरे बीच में और परमेश्वर के बीच का ये जीवन है। I cannot decide and say that I will be in heaven or it is not my decision. और ये मेरा निर्णय नहीं, मैं निर्णय नहीं कर सकता कि मैं स्वर्ग में होऊंगा। It is God who is going to decide and who is going to tell where I am going to be. परमेश्वर निर्णय निर्धारित करेगा कि मैं कहाँ पर होऊंगा। I was just thinking myself in the coffin box. और मैं उस कॉफिन बॉक्स के अंदर अपने आप को जब सोचता हूँ, A dead man. और एक मृत्यु पाया हुआ व्यक्ति, People around, the church people around. और कलीसिया के लोग आसपास,
It is like a robe that of righteousness where people are talking the days of life and the way what I lived on this earth. और वे शायद मेरे धर्मी होने के जीवन को, जो मैंने जीवन इस संसार में जिया, उसके बारे में शायद लोग बात करेंगे, Testifying about myself. मेरे जीवन के बारे में गवाही देंगे, It is only till that point of time और उसी समय तक ही, or point of burial. और वहाँ पर गाड़े जाने के समय तक. But after that, that is something where I need to face personally with God. और उसके बाद का समय जो है मुझे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का सामना करना है. Because there are certain things which I know and God knows and my other people around does not know. और क्योंकि ऐसी बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो मैं और केवल परमेश्वर ही जानते हैं, वे अन्य आसपास के लोग नहीं जानते होंगे. That is the reason every day of my life I just ask and pray one thing. और इसी कारण से प्रतिदिन मैं एक चीज़ प्रार्थना करता और मांगता हूँ निरंतर. Lord, I don't want to sin प्रभु, मैं पाप नहीं करना चाहता and I want to live a sin-free life. और मैं पाप से मुक्त जीवन जीना चाहता हूँ, Out of depth, और पूरी तरह से मृत्यु से अलग, out of every depth of to any person, और किसी भी व्यक्ति के प्रति कर्ज के बिना, and a life that where I could stand with a clear picture. और मैं वहाँ पर जहाँ परमेश्वर के सामने एक सही चित्र के साथ, एक शुद्ध चित्र के साथ खड़ा रह सकूँ. Last week also we heard about dying to self, carrying the cross. और पिछले सप्ताह भी अपने आप का इनकार करके क्रूस उठाने के बारे में हमने सुना. I was just sitting back and I was just examining and seeing myself. Am I really carrying the cross every day? और मैं अपने बारे में जांच रहा था, क्या मैं प्रतिदिन उस क्रूस को उठाता हूँ? I want to carry it every day, but am I really carrying it? मैं प्रतिदिन उसको उठाना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं उसको उठाकर चल रहा हूँ उस क्रूस को? The desire is there, but at one point of time, I really leave the cross and do other thing. वो इच्छा तो मेरे अंदर है, लेकिन एक समय ऐसा आता है उस क्रूस को छोड़कर मैं अपनी ही इच्छा पूरी करता हूँ. A coin has got two sides. और एक सिक्के की दो बाजू होती है. That is what our spiritual life also means. और उसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन भी है. Where I need to kill my self attitude, where I need to put down, which I'm praying every day and working out and asking God grace, where I really come out of those things and carry that cross which is not so easy. और जहाँ पर एक समय एक बाजू जिसकी है जो अपने आप को पूरी तरह से मारता है, अपनी इच्छाओं को, और उस क्रूस को उठाता है जो बड़ा आसान नहीं है. Being a dead person, dead in sin. और मृत्यु पाया हुआ व्यक्ति, इसका मतलब पाप के प्रति मृत्यु पाया हुआ व्यक्ति. That person who will not want to sin or not live a life of hypocrisy or wear something and show something to the people around. और ऐसा व्यक्ति वो होगा जो पाखंड से भरा हुआ नहीं होगा कि वो जीवन में कुछ और होगा, बाहर कुछ और दिखाएगा, ऐसा नहीं. This is the desire I'm seeking and I'm praying about every day, and that's what I long to live a life like that. और यही इच्छा कि मैं लालसा करता हूँ, इसको जीने की कोशिश मैं करता हूँ, और यही मेरे जीवन में चाहिए मुझको. Another side of the coin where today Brother Danny spoke about. और सिक्के की दूसरी बाजू जो भाई डैनी ने आज बताया, It is the life where God sees. और दूसरा बाजू जो ऐसा जीवन जो परमेश्वर देखता है. Not hypocrite, where spiritually I should not die. और वहाँ पर जहाँ पर आत्मिक रूप से मैं नहीं मरता हूँ. Like where God does not spit me out. जहाँ परमेश्वर मुझको नहीं उगलता है. Because that is where I need to stand and I need to fight every odds of my life. और वहीं पर खड़े रहकर मुझे हर एक जीवन के हालातों के प्रति लड़ना है. Where God should not puke me out. और जहाँ परमेश्वर मुझको वहाँ से दूर नहीं करना चाहिए. Imagine when something that I have eaten which is not good and I puke it out. और सब आप कल्पना करके देखिए, ऐसा कुछ मैं खाता हूँ जो सही नहीं होता और तुरंत मैं उसको उगलता हूँ, थूकता हूँ बाहर. Where God says I don't want you in my house. और वैसे ही परमेश्वर यदि कहे कि मेरे परिवार, मेरे घर के अंदर तेरी कोई आवश्यकता नहीं है. Today I'm sitting inside the church. और आज शायद मैं कलीसिया के अंदर बैठा हुआ हूँ. But when God's house, God says you are not fit and insults me and says get out of my house. और शायद परमेश्वर के भवन के अंदर शायद मैं अंदर बैठने के लायक नहीं रहूँगा, मुझे बाहर कर देगा. Really, that is not the life I want to desire. और ऐसे जीवन की लालसा मैं नहीं करना चाहता. I really seek and pray every day, Lord, help me to live a life without sin. और प्रभु, इसलिए मैं प्रभु को खोजते हुए यही प्रार्थना करता हूँ, ऐसा जीवन जीने में मदद कर जिसमें कोई पाप नहीं. John chapter 15, there is a verse there. यूहन्ना 15 के अंदर वचन है. He says where in 6 and 7 6 और 7 that I need to if a man abides not in me, और यदि कोई मुझ में बना नहीं रहता he is cast forth
as a branch and withered. वो डाली के समान फेंक दिया जाता है जो सूख जाता है, And then later on that is burnt. और वो आगे जाकर उसको जलाया जाता है. There is no place at all. उसके लिए कोई जगह नहीं. And again verse 7 says, if ye abide in me लेकिन 7 वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहते हो and my word abides in you, और मेरा वचन तुम में बना रहता है, and then it says you ask और तब वो कहते हैं तुम मांगो, what ye will and shall be done unto you. और वो जब तुम मांगोगे तुम्हारे लिए वो हो जाएगा. So today I really ask, and I need that desire that Lord, I want to abide with you, and I want to have the privilege of being your son and your daughter. और आज मुझे मांगना है कि प्रभु मैं तुझ में बने रहना चाहता हूँ, सौभाग्य जो तेरा बेटा या बेटी होने का, उसमें बने रहने का. A attitude where I should not just show outwardly. और एक ऐसा स्वभाव कि जो बाहरी तौर से केवल दिखावटी बनावटी दिखाना नहीं चाहता. Like the example what Danny gave about a cobra snake inside the bottle and just longing to come out one day and bite. और जैसे कि एक बक्से के अंदर एक कोबरा नाग जो होता है और एक दिन वो बाहर आने के लिए बहुत लालसा करता था कि बाहर निकल के काट सके. It should die completely. वो भीतर पूरी तरह से मरना चाहिए. I should not allow it to come out in any ways, in any circumstances. किसी भी हालात के अंदर मुझे उसको बाहर निकलने की अनुमति नहीं देना. This is what I was encouraged, and I really thank God, and I really want to outgrow and live a life testifying God. और इसी के द्वारा मैं प्रोत्साहित हुआ और इसी के अंदर मैं बढ़ना चाहता हूँ उसकी गवाही देते हुए. Thank you. Praise the Lord. थैंक यू, धन्यवाद.